Hello everyone, my name is Hera Shaheen and today I am going to discuss simplex algorithm for linear programming problem. Before starting this topic, I'd like to say that you should know graphical method before studying this simplex algorithm. So I hope that you must have this concept of graphical method and linear programming problem. So what is this simplex algorithm? In this simplex algorithm and why simplex algorithm came, since we have graphical method, so there is a drawback of graphical method that we can use graphical method for only two variables, but for more than two variables we cannot use graphical method to find optimal solution. That is why the simplex algorithm came, and for this algorithms can be used to find optimal solution for more than two variables. So let us see what is this algorithm is. So in this algorithm, we make initial table, that is called initial simplex table, and then we find out whether optimal solution has been reached or not. If it has been reached, we stop there. Otherwise, we have to follow some set of operations iteratively, means we have to do these operations repeatedly until and unless we do not get optimal solution, and then we stop. Otherwise we see that if we can find optimal solution or not, then also we will stop there. So what is this step which we repeat is we have to find out what is the choice of entering variable, what will be the choice of leaving variable, what will be the pivot element, and we find again that optimal solution has been reached or not. If it is has been reached, we stop there. Otherwise we repeat these steps. Okay, so what is this next step? What we do, what are the important things we have to know in this uh, simplex algorithm. So first, a linear program that appears in a particular form where all constraints are equations and all variables are non-negative is said to be in standard form. Now we have slack variable and surplus variables. What is this slack variable and surplus variable? We have constraints of type less than equal to make it equal to form, we add some slack variable. Suppose we are naming it as ei, then we add which is ei is non-negative, we add ei to make it equal to type. What is this? Less than equal to constraint will be converted to equal to. How? We add slack variable e1 which is non-negative, that is why here it is written e1 is greater than equal to 0. And for greater than equal to type, we add subtract surplus variable. So slack variable is added and surplus variable is subtracted, but it is also greater than equal to 0, means this is also non-negative. Okay, so linear program that contains technological constraints of the type less than equal to is linear programming, or we abbreviate as LP. So what is this basic variable and non-basic variable? Suppose we have n equations as n variables with m equations and n is greater than equal to m. What does it mean? हमारे पास n variables हैं and m equations हैं और n आपका m से बड़ा या बराबर है. Then what we have to do? N we have to set n minus m variables. n minus m n माइनस एम मतलब सपोज आपके वेरिएबल्स जो है 5 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं 2, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3. तो 3 वेरिएबल्स को हमको क्या करना है, इक्वल 0 सेट करना है. सेट n माइनस m वेरिएबल्स इक्वल टू 0. दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनबीवी कहते हैं. एंड सॉल्व द सिस्टम फॉर m रिमेनिंग वेरिएबल्स, और जो बाकी के m रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं. दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स. द वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्यूशन. It contains both basic and non-basic variables. A basic solution is admissible if all variables of the basic solution are non-negative.
So it is crucial to have the same number of variable solution of LP for which all variables are non-negative is called an admissible basic solution. The admissible basic solution corresponds to an extreme point or corner point. Suppose this is a linear programming problem, max z equal to 1000 x1 plus 1200 x2, such that these are constraints. So we have to convert it in a standard form. So this less than equal to variables constraint. For this we have to add slack variables. Suppose I have added slack variable E1 in the first constraint. In the second constraint we add E2. In the third constraint we add E3. In the fourth constraint we add E4. So it will be less than equal to will be converted to equal to form. So now we have 2 plus 4, 6 variables. How? These are slack variables are added here. Now, so what I told just now, set n minus m variables to equal to 0. Here we have n equal to 6 and m equal to 4. So n minus m is 6 minus 4 is equal to 2. So we have to make 2 variables equal to 0. मतलब क्या कि दो वेरिएबल को हम किसी दो वेरिएबल को 0 करेंगे तो वो जो है आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे और बाकी सबको जो सॉल्व करेंगे वो आपके बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे. तो इनिशियली हम लोग जो आपका वेरिएबल्स था गिवन वेरिएबल्स उसी को हम 0 सेट करते हैं जिसको हम नॉन बेसिक वेरिएबल कहते हैं और जो स्लैक वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि बेसिक वेरिएबल्स कहलाता है. नाउ तो इनिशियल टेबल हमारा कैसे बनता है. बेसिक वेरिएबल वाले इस तरह का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पे ऊपर कॉलम के हेडिंग में वेरिएबल्स सारे लिखेंगे. जनरली आपका स्लैग वेरिएबल S1, S2, S3, S4 के नाम से यूज करते हैं. यहाँ पे E1, E2, E3, E4 लिखा है और जितने भी आपके वेरिएबल्स हो गए टोटल X1, X2 और जितने स्लैग वेरिएबल्स हैं सबको हम यहाँ लिखेंगे और उसके कोफिशिएंट जो Z इक्वेशन में है उसको यहाँ लिखेंगे. Z इक्वेशन में जो स्लैग वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट 0 होते हैं और बेसिक वेरिएबल्स को यहाँ पे एक कॉलम में लिखते हैं और जो बेसिक वेरिएबल्स जो आपके E1, E2, E3, E4 है उसके कोफिशिएंट Z इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है यहाँ जो ऊपर लिखा है जिसको हम CJ कहते हैं वो हमारा कोफिशिएंट वही कोफिशिएंट यहाँ भी लिखते हैं हम. तो जब भी इनिशियल टेबल हमारा बनता है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का तो इसकी कोफिशिएंट हमेशा 0 होती है. नेक्स्ट थिंग जो है हमको यहाँ लिखना है BI जो यहाँ लिखा है जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम लोग यहाँ लिखते हैं. इसको हम XB भी कहते हैं या फिर हम सॉल्यूशन कह सकते हैं वो यहाँ लिखेंगे. और ये क्या होता है CJ इंटू CB इंटू XB यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं जो कि यहाँ पे Z होता है और CJ आपका ये ऊपर जो हमने हेडिंग में लिखा है वेरिएबल्स के ऊपर वो CJ है और ZJ हम कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट इनटू X जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स का जो X का वैल्यू है और जो कोफिशिएंट वाला जो कॉलम है यहाँ पे Z का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो वो ZJ हो जाता है. जैसे अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये कैसे निकालेंगे 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0. तो जो कि ये 0 है यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ये आपकी ZJ सबकी 0 ही आएगी क्योंकि ये सारे कोफिशिएंट 0 है. अब 0 से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो वो फाइनली 0 ही आएगा. तो यहाँ इनिशियल टेबल में ये ZJ 0 आता है और जब CJ माइनस ZJ करते हैं एक हम निकालते हैं CJ माइनस ZJ. तो समटाइम्स आप क्या किसी बुक में देखेंगे ZJ माइनस CJ निकाला हुआ है या CJ माइनस ZJ निकाला हुआ है. तो अगर आप CJ माइनस ZJ करते हैं या ZJ माइनस CJ करते हैं आपको कंसेप्ट समझना है कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. लेकिन जब आप ZJ माइनस CJ करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि मोस्ट नेगेटिव नंबर आप फाइंड आउट करते हैं
और जब CJ माइनस ZJ करते हैं तो इसमें से जो आपका मोस्ट पॉजिटिव नंबर होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये इनिशियल टेबल कैसे बनाते हैं ये बताया मैंने, और क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं। ZJ निकालते हैं, CJ माइनस ZJ निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है ये बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 0 into 10 x1 कॉलम के लिए जो ZJ निकाला गया है वो बता रहे हैं 0 into 10 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 1 प्लस 0 into 0। ये हो गया 0 x1 वाले कॉलम के लिए जो ZJ आया वो ये हो गया। पिंक फ्रेम, देखिए द ब्लू फ्रेम कॉरेस्पॉन्ड टू द कंस्ट्रेंट्स, जो ब्लू फ्रेम है ये कंस्ट्रेंट्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ग्रीन फ्रेम कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ZJ को। ZJ क्या है? कोफिशिएंट्स इनटू AI, जो आपके इसमें वैल्यूज आ रही है AI और इसमें जो कोफिशिएंट्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x1 कॉलम के लिए करके बताया, इस तरह से हम सारे कॉलम्स का फाइंड आउट करते हैं। और पिंक फ्रेम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोफिशिएंट, ये जो आपका पिंक फ्रेम है यहाँ ऊपर और यहाँ इस तरह दोनों जो है कोफिशिएंट है, जो कि Z इक्वेशन से हम लेते हैं इनिशियल टेबल में। यहाँ पे ये वाला जो कोफिशिएंट है जो ऊपर हमने लिखा है ये तो आपका सारे टेबल में सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट हम लिखते हैं ये आपका हर बार चेंज हो सकता है हर इटरेशन में। अगर ये आपका बेसिक वेरिएबल यहाँ से कुछ भी चेंजेस होते हैं तो जो बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में वेरिएबल्स आएगा उसके कोफिशिएंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। ग्रे फ्रेम कॉरेस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, ये जो आपका ग्रे फ्रेम है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल। Orange frame correspond to the value of Z, that is the value of the objective function calculated as follows. देखिए ये ऑरेंज फ्रेम जो है ये कैसे निकाला है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी Z की वैल्यू को कैसे निकाल रहा है, 0 into 200 प्लस 0 into 60 प्लस 0 into 34 प्लस 0 into 14। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल टू द सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल। कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा और कौन सा लिविंग वेरिएबल होगा। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है आपका कि पाइवट कॉलम किसको फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे जैसे CJ माइनस ZJ दिखा रहा है, ठीक है। आप किसी और बुक में या किसी और मटेरियल में देखेंगे तो वहाँ ZJ माइनस CJ होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द CJ माइनस ZJ कह रहा है मैक्सिमम वाले प्रॉब्लम के लिए। वही अगर ZJ माइनस CJ करेगा तो आपको मैक्सिमम नहीं मिनिमम देखना होगा। ये क्या कहता है, मैक्सिमम ऑफ द CJ माइनस ZJ फॉर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, यानी मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम में क्या करना है, CJ माइनस ZJ अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कौन सबसे मैक्सिमम है वो देखना है। यहीं पे अगर आप ZJ माइनस CJ करेंगे और मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आपको मिनिमम देखना होगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, CJ माइनस ZJ करते हैं और अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हमको मिनिमम देखना है, और अगर ZJ माइनस CJ करेंगे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में तो मैक्सिमम देखना है। इन आवर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो x2 की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट है जब आप CJ माइनस ZJ कर रहे थे, तो आपका वो पाइवट कॉलम हो जाएगा x2 वाला। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेंस इट एंटर्स इन द सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल। नेक्स्ट इटरेशन में x2 जो है बेसिक वेरिएबल के सेट में एंटर हो जाएगा और उसमें से कोई एक वेरिएबल हटेगा। तो उसमें से वेरिएबल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए सिलेक्शन ऑफ द लिविंग वेरिएबल कैसे निकालते हैं, ऐसा रेशियो फाइंड आउट करते हैं BI अपॉन AIK। जो भी आपका AIK क्या है, जो आपका पाइवट कॉलम होता है, यानी कि जो आपको मिला है वेरिएबल इसमें से एंटरिंग वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमें x2 मिला तो ये वाला जो कॉलम है AIK कहलाएगा और ये BI हो गया। तो BI वाले एलिमेंट को x2 वाले एलिमेंट के रो वाइज हम सबको डिवाइड करके रेशियो फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि AIK जो है आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए।
अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 34 को 0 से डिवाइड करेंगे और 14 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 34 डिवाइडेड बाई 0, वो वाला एलिमेंट को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब 0 से आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 से डिवाइड, 0 हो या फिर निगेटिव हो, तो उनको हम छोड़ देते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपका 200 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 40 है, 60 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 20 है, 14 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 14 आएगा। इनमें से जो मिनिमम होता है वो मिनिमम रेशियो हमको फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे सपोज हमको 40, 20 और 14 आया। 14 हमारा किसके लिए आया, लास्ट वाले रो के लिए, यानी फोर्थ रो के लिए। तो ये आपका फोर्थ रो में जो बेसिक वेरिएबल में पहले प्रेजेंट था वो E4 था। E4 यहाँ से हट जाएगा और X2 यहाँ पे रिप्लेस होगा नेक्स्ट इटरेशन में। तो यहाँ तक का स्टेप जो है क्लियर हो जाएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या क्या हमने देखा वो आपको समझ में आया। इनिशियल टेबल हमको कैसे बनाना है, उससे पहले हमको स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल ऐड करना होता है। फिर एक टेबल में हम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको, जहाँ पे ये बेसिक वेरिएबल लिखते हैं और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। यहाँ पे बेसिक BI जो है सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे आप अलग अलग तरीके से देखें। कहीं पे ये जो है BI जो है कॉलम, वो कभी यहाँ पे लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आपने देख लिया पाइवट कॉलम कैसे फाइंड आउट करना है, पाइवट रो कैसे फाइंड आउट करना है। मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो से आपको पाइवट रो मिल जाएगा। तो ये आपका पाइवट रो निकल गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका, जो पाइवट रो और पाइवट कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, यानी कि जो पाइवट रो है आपका ये E4 वाला हो गया और पाइवट कॉलम हो गया X2 वाला। दोनों का इंटरसेक्शन ये वो जो 1 लिखा है ये हो जाएगा। जो येलो वाले कॉलम, जिस येलो कलर है, इससे जो इंटरसेक्शन हो रहा है पाइवट रो का, वो होगा ये 1। तो X2 वाले कॉलम में जो 1 है यहाँ पे वैल्यू, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ रो में, वो ऑलरेडी 1 है, जिसको हम यहाँ पे पाइवट एलिमेंट कहते हैं। तो पाइवट एलिमेंट को हमको नेक्स्ट इटरेशन में करना क्या होता है कि 1 बनाना होता है। अगर ये 1 नहीं होता है तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट यहाँ पे होता है, सपोज यहाँ पे 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 रहेगा तो हम 3 से इसको, इस पूरे रो को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करेंगे कि इसको 1 बना देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 1 बना दिया और बाकी सबको वैसे ही चेंजेस करेंगे जैसे कि आपका ये एलिमेंट 1 हो। डिवाइड हमने क्या किया, सपोज पहले से 1 था तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। और अगर पहले से 1 नहीं होता तो फिर हमको डिवाइड करके उसको 1 बनाना होता। तो जब डिवाइड करेंगे तो पूरे रो में करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये आपका हो गया। अब बाकी क्या करेंगे, जितने भी जो बेसिक वेरिएबल वाले इस कॉलम में जो जो वेरिएबल्स आया है E1, E2, E3 और X2, अब इनको हमको यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है कि E1 वाले कॉलम में पहला एलिमेंट 1 होगा, बाकी 0 होंगे। E2 वाले कॉलम में पहला एलिमेंट 0 होगा, दूसरा 1 होगा और तीसरा और चौथा 0 0 होंगे। E3 वाले कॉलम में तीसरा एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। E4 और उसके बाद है X2। X2 वाले कॉलम में लास्ट वाला एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो हमको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है कि ये सब 0 हो और ये 1 हो जाए। मतलब क्या कि जो बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में जितने वेरिएबल्स हैं वो यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ताकि आपका वो मिले। और फिर हम चेक करेंगे ZJ और CJ माइनस ZJ करेंगे, या जो भी आप यूज कर रहे हैं। ZJ माइनस CJ कर रहे हैं तो आप ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी कौन सी वैल्यू, अगर आपने ZJ माइनस CJ किया है
तो आप देखेंगे कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, जो आपको बताएगा कि आपका पाइवट कॉलम कौन सा होगा। उससे पहले आप देखेंगे कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर आपको मिल गया है तो आप वहीं पे एंड हो जाते हैं, वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, जैसे यहाँ Cj माइनस जेड किया है, तो सारे Cj माइनस जेड जब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाते हैं तब हम जाके रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, अदरवाइज वी मूव ऑन। तो यहाँ देखिए, यह आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, सारे Cj माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 0 होंगे मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में, तो आप वहाँ पे एंड हो जाएंगे यानी स्टॉप करेंगे। अदरवाइज आप उसको इटरेशन आपका वो चलता रहता है, सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में एलिमेंट्स आ रहे हैं, बेसिक वेरिएबल्स वाले कॉलम में, वो यूनिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और Zj फाइंड आउट करना है, Cj माइनस Zj फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपका अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम वहाँ पे एंड हो जाएंगे, और एंड होने के बाद अपना Zj और जो वेरिएबल्स हमारे हैं उनकी वैल्यूज को हमें बताना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये एक टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करेंगे, इसका हमने बताया आपको इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।